Okay, students. The unsolved problem exercise 1.3, question number 3 and question number 5. So first of all, first question is A star B equals to A plus B minus AB. For all AB belongs to R minus 1. Then examine the commutativity, associativity and find out the identity and inverse element of these operations. So first of all, number 1, commutative. A star B equals to A plus B minus AB. It is in left hand side. So right hand side is B star A equals to B star A means B plus A minus BA. So therefore A star B equals to B star A. Star operation is a commutative. Second is associative. Associative in left hand side, A star B star C equals to A star B means first plus second minus first into second. A plus B minus AB star C. It is in first and second. So A plus B minus AB plus C minus A plus B minus AB into C. Just call A plus B minus AB plus C minus AC minus BC plus ABC. So therefore A plus B plus C minus AB minus BC minus AC plus ABC. RHS for associative. अब क्या करेंगे बी और सी में पहले ऑपरेशन अप्लाई करेंगे ए में बाद में ए स्टार बी स्टार सी. So first of all A and first applied B star C. First and second. First element is B and second element C. So B plus C minus BC. Applied B star C. So first is A and second is B plus C minus BC. So applied binary operation. First plus second minus first into second. B plus C minus BC. So equals to A plus B plus C minus BC minus AB minus AC plus ABC. So therefore LHS equals to RHS. So star operation is associative. Next is identity element. Identity element, since A belongs to R minus 1. So A star E1 equals to A and E2 star A equals to A. तो ये आइडेंटिटी निकालने का फॉर्मूला है. लेफ्ट हैंड राइट हैंड आइडेंटिटी, लेफ्ट हैंड आइडेंटिटी. सो A star E1 equals to A plus E1 minus A E1 equals to A. A cancel out. E1 bracket 1 minus A equals to 0. So E1 equals to 0. Next, E2 plus A minus E2A equals to A. A cancel out. Next, E2 1 minus A equals to 0. So E2 equals to 0. Therefore, E1 equals to E2 equals to 0. 0 is belongs to R minus 1. So identity is 0. Last and final, inverse element.
inverse element is A belongs to R minus 1, so X is an inverse. फॉर्मूला है A स्टार X इक्वल्स टू E, ये आइडेंटिटी आपको मैं नोट करा चुका हूं। तो सॉल्व इट, A स्टार X इक्वल्स टू 0, A प्लस X माइनस AX इक्वल्स टू 0, X 1 माइनस A, ये A ट्रांसफर कर देंगे माइनस A, तो X इक्वल्स टू माइनस A अपॉन 1 माइनस A, so therefore X equals to minus A upon 1 minus A. A is not equals to 1, it is an inverse. ओके, ये क्वेश्चन हो गया हमारा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कंस्ट्रक्ट ए कंपोजिट टेबल। कंपोजिशन टेबल में हमें क्या करना होता है, जैसे कल मैंने बताया था आपको कि कंपोजिट टेबल में हमें कुछ एलिमेंट्स गिवन होते हैं और एक आइडेंटिटी गिवन होती है। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इसमें हम कंपोजिट टेबल बनाएंगे तो फंक्शन है 1 2 3 4, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 5 कॉलम और 5 रो तैयार करेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पर लिख देंगे हम कंपोजिशन FOF। ठीक हो जाएगा F1 F2 F3 F4, F1 F2 F3 F4, और ये सारे फिलअप करेंगे अपन कंपोजिट फंक्शन से, क्योंकि यहाँ पर जो ऑपरेशन है वो कंपोजिशन वाली टेबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल F1 को F1 से अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, F1 O F1 X इक्वल्स टू F1 ब्रैकेट F1 X, F1 इधर x की वैल्यू लिख देंगे, F1 x की वैल्यू कितनी है x, तो F1 x हो गया करेक्ट। नेक्स्ट फाइनल x, इधर x आ जाएगा। नेक्स्ट F1 की F2 से अप्लाई करेंगे तो F1 O F2 x इक्वल्स टू F1 अंदर आ जाएगा कितना F2 x इक्वल्स टू F1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी माइनस x, ये भी आ जाएगा कितना माइनस x। नेक्स्ट F1 O F3 x, F1 ब्रैकेट में आ जाएगा F3x, F3x की वैल्यू डाल देंगे F1 F3x इक्वल्स टू 1 अपॉन x, तो ये F1 में डालेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कितना हमारा 1 अपॉन x। नेक्स्ट अगेन 1 अपॉन x, इसी टाइप से यहाँ x हो गया, इधर माइनस x आया, ये 1 अपॉन x आया। F1 ओ F4, इधर x रखेंगे, F1 ब्रैकेट F4x, तो F1 इधर F4x की वैल्यू लिख दी माइनस का 1 अपॉन x, ये x के अंदर लिखेंगे तो ये यही आ जाएगा 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x। अब ये F2x की वैल्यू निकालेंगे तो F2O F1 x, इधर F2 लिखेंगे, नीचे लिख देंगे F1x, ये हो जाएगा F2, इधर की वैल्यू कितनी हो गई x। अब F2 के अंदर ये लिखेंगे हम, इधर x लिखा ना, तो F2x की वैल्यू कितनी है माइनस x, यहाँ माइनस x आ जाएगा, तो इधर माइनस x लिखा, इधर x आ जाएगा। इसको इसके साथ करेंगे तो F2O F3 आपको सॉल्व करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे F2 ब्रैकेट F3x, जस्ट कॉल F2 F3x की वैल्यू 1 अपॉन x। अब ये 1 अपॉन x जो है F2 में डालेंगे, तो F2 में, तो F2 में माइनस है, इधर डालेंगे 1 अपॉन x, तो ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन x, इधर आ जाएगा माइनस 1 अपॉन x। अब ये नेक्स्ट आ जाएगा 1 अपॉन x, इसमें लिखेंगे 1 अपॉन x, इधर आ जाएगा माइनस 1 अपॉन x। इसमें जब सॉल्व करेंगे F2 को F3 से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे F3O F2, इधर F3, इसमें F2 की वैल्यू डाल दी, ये हो जाएगा F3, F2 कितना है, F2 हमारे पास में है माइनस x, ये हम x3 में डालेंगे तो माइनस का 1 अपॉन x आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा माइनस 1 अपॉन x। ये सब चीजें इसमें देखना अपन को, इधर x आ जाएगा, इधर बचेगा माइनस x, इसमें सारी चीजें होगी तो 1 अपॉन x बचा, इसमें माइनस x, इधर आ जाएगा अपना x, ये हमारा बाइनरी वेरिएबल बन जाएगा। अब हम ये देखेंगे ये सारे एलिमेंट सेम है, और जब ये सारे एलिमेंट सेम है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर देखो आप वापस से इसको बनाते हैं 1 2 3
तो 1 2 3 4 ये हो जाएगा अपना एफ ओ एफ। इधर लिख दिया हमने F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4। देखो ये वैल्यू F1 के इक्वल है, F2 F3 F4, ये F2 ये F1 F4 F3 F3 F4 F4 F1 F2 F3 F2 F1। अब हम इसको देखेंगे कॉम्यूटेटिव आइडेंटिटी एंड इनवर्स। तो ये वाला चीज जो है इसके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में है, डिवीजन ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव। नेक्स्ट आइडेंटिटी कैसे निकालते हैं, जैसे ये मेन है तो इसके कौन साइड है F1 F2 F3 F4, ये F1 F2 तो ये वाला हो गया हमारा, ये फर्स्ट रो कौन साइड है मेन रो, एंड F2 F3 F4 ये भी सेम इसके जैसा होना चाहिए, तो ये भी हमारे पास में आ गया। एंड कॉमन एलिमेंट इज एन आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी एलिमेंट E की वैल्यू अभी F1। अब F1 से हम निकालते हैं इनवर्स कैसे निकालते हैं इनवर्स, तो F1 इधर जैसे मान लो इसमें F1 आता है, F1 का इनवर्स F1, F2 का F2, F3 का F2, क्योंकि यहाँ पर आ गया ना E की वैल्यू। सो बाइनरी टेबल इज कंप्लीट। तो बाइनरी टेबल के बाद में कॉम्यूटेटिव आइडेंटिटी या इनवर्स निकालना भी आपको आना चाहिए, तो नोट डाउन।